ओके। सो जैसा कि हमने देखा एमएचईज़ की जर्नी, एमएचईज़ के सेशंस हुए, उनकी हमने स्टोरी सुनी, उनके स्ट्रगल्स सुने, उनकी अचीवमेंट सुनी। सो नाउ बारी है हमारे एमएसएल्स की। सो बेसिकली जो एमएसएल डीपी प्रोजेक्ट है, मिसाल सोशल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, सो वो है मिसाल का एक्सटेंशन। मतलब मिसाल प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हम जाते हैं बाहर, मिसाल प्रोजेक्ट करते हैं एंड यूथ्स को खोजते हैं, ढूंढते हैं कि कैसे कैसे यूथ्स है हमारे इंडिया में। बट मिसाल प्रोजेक्ट में ये है कि हम उन यूथ्स को ढूंढते हैं और उनको आगे लाइफ में क्या करना है, उनका ड्रीम क्या है, भले वो ओएसिस से कनेक्ट हो या ना हो, उन मिसाल एमएसएल डीपीज का ड्रीम क्या है, ये उनको पूरा करने में हम हेल्प करते हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे एमएसएल्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, प्यारे प्यारे। सो हम उनको आगे बुलाना चाहेंगे, उनकी जर्नी सुनना चाहेंगे कि उनकी कैसी रही जर्नी, क्या स्ट्रगल्स वगैरह आई। एंड साथ ही में मैं उनके लीडर्स को अवधि दीदी एंड मेहुल भैया को भी इनवाइट करना चाहूँगी कि वो आगे उनकी टीम के साथ ज्वाइन हो। थैंक यू। ओके, हम पहले वीडियो देख लेते हैं। यस। India, a colorful nation. India, a nation of diversity. India, a nation of culture. A holy India. We are very proud of being an Indian, right? We say मेरा भारत महान, सबसे प्यारा हिंदुस्तान. We shout India in World Cups. We support India in politics. We sing India on national holidays. We thumbs up for India when it comes to social media campaigns. But do we ever dare to go beyond that? Do you know? 21 out of 30 world's most polluted cities in the world are of India. 68% children die due to malnutrition every year in India. 88 rape cases are documented on daily basis in India. Every hour, one student commits suicide due to academic pressure in India. It's high time to open our eyes. We are a handicapped nation. What are we really proud of? Increasing poverty, unemployment, illiteracy, illegal practices, pollution, population. Really what? Can we ever truly help India from social media campaigns, sitting in the comforts of our homes? With eyes wide open and keeping reality at forefront, Oasis decided to launch a project for empowering those youths and teens who want to contribute towards making India better in any capacity with deep sense of cause at heart. And so, a 10 days intensive leadership program named Misal Social Leadership Development Program, popularly known as MSLDP, launched as a flagship project of Oasis. Central idea of this project is to sensitize youths to social needs and build their character by selfless giving as a responsible citizens. A uniquely designed program covers the dimension of social leadership, where a youth can learn through the techniques and collected wisdom of revolutionary leaders of the world. All these teachings are delivered uniquely in form of quotations instead of long lectures. A hearty and spirited environment of learning is created through methods like self-learning, solitude time, group discussions, book reading, and many more. At every stage, the participant is encouraged to connect things with their own self and is given the space to question, understand, and transform. पहले मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ बनना है, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेनी है ताकि मैं इंडिया को ग्रो करने में हेल्प कर सकूं। पर MSLDP में आने के बाद ये टोटली मेरा ये पैराडाइम चेंज हो गया। यहाँ पे आके ये सीखा कि सर्विंग से कितना कुछ चेंज हो सकता है। फिर यहाँ पे कितने सारे इंडिया के प्रॉब्लम्स बताए, फिर लगा कि यार ये प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करने में मैं लग गई तो बस जब तक मैं बड़ी होंगी मेरा फिर पर्पस भी यही बन गया कि कुछ भी करके सॉल्व करना है, मेरी सोसाइटी को चेंज करना है। वैल्यूज़, हमारे जो भी डिसीजन है हमें हमारे वैल्यूज़ से लेना है। आज तक हम प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते आए थे कि प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे सेफ रहेंगे, बट नहीं, अगर हमारी वैल्यू है कि ये चीज़ गलत है तो हाँ ये चीज़ गलत है, फिर सामने चाहे हमारे फैमिली मेम्बर्स और बेस्ट फ्रेंड भी क्यों ना हो, बट हाँ वो चीज़ गलत है, हमेशा सही के लिए खड़े रहो। ये मैंने यहाँ पे आके सीखा। I can do anything because I have all this strength in me. The only thing we want while doing a thing is that a heart. If we have a good heart, we can do everything. MSLDP के लिए मैं अगर कुछ कहूँ तो ये मेरे लिए एक बून रहा है। बून मतलब आशीर्वाद रहा है मेरे लिए
कि उसने मुझे सिखाया है खुद को ढूंढना. નતું પણ અમે બધા ભારતના યુવાન જ્યારે એક ભેગા ઊભા થઈએ છીએ ત્યારે આ લહેર ઘણી મોટી થઈ જાય છે અને આ લહેર ચેન્જ લાવી શકે એવું મને લાગી રહ્યું છે. In the last 3 days of workshop, participants, after being sensitized, take up a project for the issue they really feel for and do the detailed planning for the same. They anticipate every problem they might face and get ready for the on-field realities. Once they go back to their home, they get deeply associated with the guide from Oasis, who is their 24/7 companion for any help they need or mentoring they need from Oasis. Serve, learn, earn are the keywords of this program, enabling these youths who aspire to experience social welfare entrepreneurship to earn their pocket money, vice versa, the project they do. Participants who successfully crosses 3 stages of Misal competition, attempt to live up to the ideals of L3 workshop and emerge out of 10 days leadership development processes are the ones who are invited to take up these voluntary projects for the welfare of nation. It requires immense courage and commitment as on-field experiences and challenges are different. तो फ्रेंड्स, आई एम अनघा। मेरा नाम कृष्णा पटेल है, मैं बड़ौदा से हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम माहिशा है और मैं मुंबई से हूँ। मित्रों, मैं हूँ आपका जय साहिब फ्रॉम कच्छ। Hi all, I'm Jayalakshmi. I'm from Kerala. जब वहाँ पे 15 दिन थे तब तो बहुत जोश था कि बाहर निकलेंगे तो लोगों से बात करेंगे एंड लोग अपनी बात रखेंगे, बहुत इजीली काम हो जाएगा. बट जब बाहर निकले तब पता चलता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. ये प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तब बहुत सारे डाउट थे कि कोविड की सिचुएशन है तो कैसे होगा. बट ओएसिस से ही सीखा है ना कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है. हर फेलियर से आप सीखो एंड आगे बढ़ो. I'm not no more afraid to face no. I can go and talk to people, and with that notion that I can accept whatever be the reply or the result. We have faced so many rejections, but then something keeps us on because we are giving, we are making leaders, we are inspiring them, and that is the happiness behind it. This project helped me a lot to improve my confidence. I got to take lots of sessions in front of lots of friends. So that confidence, I felt happy about myself and I felt yes, I can also do something. That feeling I got through this journey. If you know me as a person before Oasis, I used to be the specimen for stage fear. I think my confidence has increased manifold. ये कॉन्फिडेंस है कि मैं सिर्फ फैसिलिटेट नहीं कर सकती हूँ पर पूरी चीज़ को मैं ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ. मेरी जो बातें हैं वो मैं दूसरों को समझा सकती हूँ. I can proudly say that I have touched 400 plus hearts through my project Misal. 100 से ज़्यादा लोगों के साथ लाइव क्लास किया. In this project, we have almost touched 500 to 700 students. तो इससे कुल मैं 300 से भी ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाई हूँ. But if we have the will to do something, yes, of course we can do something. If we are putting our heart into something, that will be something beautiful. So yes, of course, thank you so much. Like all programs of Oasis, the power of this workshop is not just limited to participants, but facilitators and guides have equally transformative journey to share. एक्चुअली ये इतना ऐसा काम नहीं है पर ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम पे कि हमें उन बच्चों को समझना है, उनके काम को समझना है और यहाँ से 15 दिन का ये छोटा सा कैंप में जो जुस्सा जो जुनून वो भर के लेके गए हैं उसको बनाए रखना है. जनरली हम क्या करते हैं कि या तो फिर बच्चों को हेल्प करते रहते हैं या फिर सवाल पूछते रहते हैं, पर इस प्रोसेस में हम ये कुछ नहीं करते. तो इस प्रोसेस में मैं राइट पेरेंटिंग का रोल बहुत अच्छे से सीख पाई और बहुत ही मज़ा आया उनके साथ काम करने में, उनकी प्रॉब्लम्स को जानने में और सीधी तरह से सॉल्यूशन ना देकर उनकी प्रॉब्लम को समझकर कैसे उसके सामने लड़ना है, कैसे उसमें से सॉल्यूशन निकालना है, उसमें उनको हेल्प करना है. मुझे ऐसा डर लगता था, हेजिटेशन होता था किसी के पास परमिशन लेने में, लेकिन जब मैंने इन बच्चों की स्टोरी सुनी तो मतलब वो लोग बहुत ही आसानी से ये सब कर जाते हैं. और ये बच्चे सिर्फ 15 दिन के काम के बाद अगर अपनी गलियों में, अपने शहरों में, अपने मोहल्लों में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है तो मैं क्यों नहीं कर सकती. Hi, my name is Riya Shah and I facilitated one of the MSLDP workshops.
Let me tell you, facilitating an MSLDP workshop is like none other. It is a power-packed workshop that forces you to change your own thinking and your own actions. The quotations are so powerful that I genuinely began to think that patriotism or love for the nation or love for the people is not just by saying or doing little bits here and there whenever it's convenient, but the real love for the nation and for the people is when we put our heart and soul in giving our best and doing our best for the world every single day. मैं ये कहूँगी कि हर यूथ जो यंगस्टर है आज के, उन्हें MSLDP ज़रूर अटेंड करना चाहिए, बिकॉज ये एक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है. We invite all those youths who aspire to dream for better India to come up and help in the best capacity possible, because service to others is the rent you pay for your room here on earth. Okay, so मिसाल सोशल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में शायद ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं रही अब कि प्रोजेक्ट क्या है, कैसे होता है, इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे MSLs, कैसे बच्चे आते हैं, ये सब तो वीडियो में हमने देख लिया. सो MSLDP 2020 का मोस्ट पॉपुलर, राइट, 2020 का मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट MSLDP रहा है. पूरी 2020 में बैक टू बैक मिसाल सोशल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हुए हैं 15-15 दिन के, और बच्चे यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीख के गए हैं, और उनमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आज हमारे साथ है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई वुड फास्ट लाइक टू इनवाइट ऑल द फ्रेंड्स टू स्टार्ट देयर अमेजिंग जर्नी की कैसी आपकी कोविड-19 के टाइम पे आपने बाहर जाके क्या तूफान मचाया, क्या लोगों को हेल्प की, कैसे आप खुद ये समझे. सो व्हाट आर योर स्टोरीज? वी ऑल आर dying to hear. Please come. Yes. It was a wonderful gift by Corona. Yes, please come. Sorry. हेलो, मेरा नाम भार्गव है और नवसारी में रहता हूँ मैं. पहले तो MSLDP में से जो सीखा उसको अब हमको समाज में लेकर जाना है, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आत्मजा दीदी कहती है कि नचिकेता तैयार होते हैं. मतलब जो स्वामी विवेकानंद के जो विचार में जैसे युवान थे, उसको अगर तैयार करना है तो दर्द तो होता है. 15 दिन यहाँ पे रहना पड़ता है, मेंटली एंड फिजिकली फिट रहना पड़ता है. घर की याद आती है, इमोशंस कंट्रोल करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है. कभी कभी तो बाथरूम पर जाके चीखता था मैं कि प्लीज मुझे घर जाना है. तीसरे दिन तो मैं बैग तैयार कर ली थी कि मैं जाऊंगा घर. फिर बाद में मुझे दोस्तों ने संभाला, मेरे रूममेट्स ने संभाला कि यार तू लीडर्स बनने आया है, स्वामी विवेकानंद जैसा युवान तुझे बनना है, ठहर जा. दुनिया में कितना, समाज में कितना, देश में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, और तू ही ऐसा करेगा तो फिर करेगा कौन. फिर सोचा कि नहीं, हम करेंगे, जी जान से करेंगे, दिलो जान से करेंगे. और एक बच्चे का या एक व्यक्ति का हमने जो लाइफ, उसकी जिंदगी बचाई, तो हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी. हमने यहाँ सीखे सर्व, अर्न, लर्न, लीडरशिप, सब कुछ सीखे. और अब हमको तैयार रहना था, हमारे पड़ाव के तरफ जाना था, प्रोजेक्ट्स करने थे. एक प्रोजेक्ट्स हमने तैयार लिया, मैंने एग्जाम के ऐसी की तैसी एंड रिजल्ट के ऐसी की तैसी का प्रोजेक्ट चुना और समाज में जाकर वो करना था. और यहाँ पे हमारा प्लानिंग जो बनाई थी उससे एकदम विरुद्ध हुआ वहां के. मतलब प्लानिंग जो की थी वो सही थी, पर जो घटनाएं होनी थी, जो मैंने प्लानिंग में कल्पनाएं की थी, वो सब गलत हो गई. और फिर तो लड़ना था. कभी कभी ऐसा भी लगा छोड़ दूं प्रोजेक्ट, पर नहीं, छोड़ना तो नहीं था, हाथ में लिया था. और ये वैल्यूज नहीं थी मेरी कि मैं छोड़ूं. गिव अप तो करना ही नहीं है, क्योंकि MSLDP ने मुझे ऐसा नहीं बनाया था. मैं तो मजबूत बनने आया था और मजबूत बन के गया हूं. और फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए. फर्स्ट डे से स्ट्रगल चालू. साइकिल लेकर गए थे, पंचर हुआ
और फिर वापस आना पंचर में से, स्ट्रगल्स तो बहुत हुए और आगे भी बहुत होने वाले हैं इससे बड़े बड़े और भयंकर, और मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। फिर बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए, पर एक बात मैं बोल दूं कि शुरुआत में जो सेशन लिए डोनेशन से नहीं लिए, मेरे खर्चे से लिए। मुझे ऐसा लगा कि वहां पे किसको पता है, पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों किसी के पास जाऊं और मांगू। फिर हम सेशन लेके आ रहे थे ना, तो एक ठेले वाला भैया था, वो चने बेच रहा था, सिंग कहते हैं ना, वो खारी सिंग, वो बेच रहा था। तो मेरी टीम में काफी सारे सदस्य थे, काफी सारे लीडर्स थे, तो उसमें से एक ने कहा कि मैं खाना चाहता हूँ, भूख लगे। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स तू खा सकता है। तो उसने वहां पे खाया। फिर हम सबने जेब में हाथ डाला। किसी के पास पैसा नहीं था, उसने सोचा था मेरे पास है, मैंने सोचा था उसी के पास है, पर पैसा किसी के पास नहीं था। फिर वो ठेले वाले भैया ने पूछा हमसे कि क्या करते हो, अभी कहाँ निकले हो, साइकिल लेके क्यों जा रहे हो, बैग क्यों है, और ये बुक्स एकेटी और आरकेटी की बुक्स ये क्या है। फिर हमने उसे समझाया, बहुत जबरदस्त समझाया कि हम ऐसा काम करते हैं, और उसने कहा कि तुम समाज के लिए ऐसा कर सकते हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता। वहां से मोटिवेट मिला कि मुझे पुस्तक लेना है, मुझे डोनेशन लेना है, मैं जाऊंगा और डोनेशन इकट्ठा करूंगा। रात को घर गया और घरे जाकर मैंने डेफिनेटली तय कर लिया कि अब मैं जाऊंगा गांव में, जो जो भी पैसे वाले हैं सबके घर जाऊंगा। मुझे देना नहीं देना है उसकी मर्जी है, पर मैं जाऊंगा, ये तो मेरा कर्तव्य है ना, मैं नचिकेता बनना चाहता हूं ना। मैं गया और सबके पास मैंने बात रखी। 3,000 रुपये एक नाइट में मैंने डोनेशन इकट्ठा किया। ओके। फिर स्ट्रगल्स यहाँ रुकनी नहीं थी। स्ट्रगल्स के लिए तो काफी नवसारी मतलब कई सारे गांव आदिवासी गांव है, तो वहां पे जाना होता था। तो वो लोगों ने मैं मिशनरी समझ लिया, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड्स के पास बाइबल थी, तो बाइबल हाथ में पकड़ी थी, तो मिशनरी समझ लिया। हमें मारने दौड़े। फिर मारने तो दौड़े, गांव अपरिचित था मेरा, क्योंकि मैं वैसे नवसारी का हूं नहीं, पर मारने दौड़े तो गांव में 2-3 लोग थे जो हमें पहचानते थे, पर हमारी बाइक वहां थी, क्योंकि वहां पे कोई वाहन जाता नहीं है, बाइक लेके हमको जाना था। और बाइक वो सब गांव में पड़ा और हम रोड पे चढ़ गए, क्योंकि पीछे पड़े थे मारा, तो हमारी वैल्यूज नहीं थी कि हम उसे कुछ करें, इसलिए हम रोड पर चढ़ गए। फिर हुआ है कि गांव में जो 2-3 व्यक्ति थे जिसको हम जानते थे, उसको हमने कॉल किया, वो आए, और फिर उन लोगों को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे धर्म के खिलाफ किसी को भड़काएंगे नहीं, तुम इस पर ट्रस्ट कर सकते हो। फिर हमने समझाया कि हम पूरा सेशन आपके सामने लेने वाले हैं, आप यहाँ बैठिए, जरा सा भी अगर आपको लगे कि ये धर्म के विरुद्ध है या किसी को उकसाने वाला है, तो आप जो चाहे वो हमें कर सकते हैं। फिर वो बैठे वहां पे, उसने सेशन देखा और कहा कि सॉरी, मेरे से गलती हो गई, अब ऐसी गलती मैं वापस नहीं करूंगा कि बिना जाने पहचाने किसी को नहीं मारूंगा, मतलब किसी के पीछे नहीं दौड़ूंगा। ऐसी स्ट्रगल्स वहां पे हमने मैं एक ऐसा इंसान था जो एक्शन के जो किसी ने एक्शन करने का सोचा तो मैं उससे पहले सोच लेता मैं रिएक्शन दे दूं, मतलब एंगरिंग। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, अभी भी है, पर बहुत ज्यादा कंट्रोल में है अभी। पर वैल्यूज थी कि हमें स्माइल ही देनी है। फिर वो लोगों ने भी समझा। फिर एक ऐसा मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट आया। नवसारी के एक छोटे से गांव में हम सेशन लेने जाने वाले थे, और सेशन लेने जाने वाले थे तो सेशन ट्यूशन क्लासेस था, मतलब एक बहन थी जो ट्यूशन क्लासेस चला रही थी, उसके यहाँ हमें सेशन लेने जाना था। तो हम सेशन लेने गए, 10-11 बच्चे थे और सबको हमने सेशन लिया, पर उसमें से एक बच्ची थी 7-8 साल की थी, उज़मा नाम था उसका। उज़मा हंस नहीं रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने कहा यार ऐसे कैसे। मेरी टीम जो थी उसने भी कहा कि लड़की को बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोल रही है। फिर हमें लगा कि शायद कोई इसको डिसऑर्डर्स होगा साइकोलॉजिकल, की हंस नहीं रही है। फिर हमने ट्यूशन के जो वो थे बहन थे उसको पूछा कि क्यों ये
लड़की हंस नहीं रही है। तो उसने कहा कि इसके फादर की डेथ हो गई है, इसलिए शायद इसने हंसना छोड़ दिया है, और ज्यादा आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके घर जा सकते हैं। मैंने उसके घर जाना पसंद किया कि यार मेरा यही फर्ज नहीं है कि मैं सेशन पूरा करूं, क्योंकि अब दिल से करना है मुझे, कोई बच्चे की लाइफ का सवाल है, तो इसलिए मैं उसके घर गया। मेरी पूरी टीम मेरे साथ थी। घर जाने के बाद उसने कहा, और उसकी मम्मी से मिले। उसकी मम्मी जॉब करती है, उसके फादर की डेथ हो गई है लड़की के सामने एक्सीडेंट में। वो लड़की ने अपनी आंखों से अपने पिता की मृत्यु को देखा है और वो सदमे में थी। और उसका छोटा सा भाई था, मम्मी जॉब पर जाती थी, वो घर पे दोनों अकेले रहते थे। कहाँ से ऐसे, बेचारी अकेली थी। इसलिए फिर हमने तय किया कि नहीं, हम उसको हंसाएंगे। और दूसरे दिन हम गिफ्ट्स देने जाते थे, क्योंकि हमारे पास डोनेशन था, तो हम ऐसा तय करते थे कि सेशन लिया, उस बच्चों को वापस से जाते गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट्स देने गया था, तो उज़मा थी, और आज तो हमने नक्की किया था जब तक वो हंसे नहीं घर वापस आना नहीं। टीम भी मेरी इतनी पावरफुल है, क्योंकि टीम की वजह से मैं टिका हुआ हूँ अभी तक। फिर हमने तय किया कि हंसाना है, सब जोक्स किए, इतना सब कुछ किया, और आखिर में उज़मा हंसी और हंसकर मुझे हग किया, और मेरे आंख में से आंसू निकल गया। वो मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट मोमेंट थी कि यार अब जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ और लगता है कि अब प्रोजेक्ट छोड़ दूं, काम छोड़ दूं, वैसे भी मुझसे नहीं होता है, तो ऐसी उज़मा मेरे दिमाग में आती है कि यार इतनी कितनी हजारों उज़मा है, लाखों उज़मा है, किसी कोने में पड़ी है, मायूस पड़ी है, उसको एक सहारा तो मिलता है, कोई तो उठो। मैं नहीं उठूंगा तो कोई उठेगा, कौन उठेगा? और वहां से मुझे फिर से इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं, मुझे करना है, करना है, करना है। थैंक यू सो मच। Hi all, I'm Jayalakshmi coming from Kerala. So yes, Masal was over. I was a Masal winner, and yes, it was the time for the camp. So it was like you have a 15 days camp, and we had 8 days to decide whether going to attend the camp or not. So I told my mother like I have a camp 15 days. So she asked residential or what, online? So I told residential. So my mom told no, don't go, because traveling from Kerala to Gujarat and we have no idea about what is this Oasis and all. I was hearing this name for the first time. So my mother was like, no. So I told my mother, Mom, I want this badly. So because I was too much inspired with that journey and all, I was too much inspired, and I badly want to come here and attend this camp. I don't know what's going to happen in all, but I just want to give it a try and I want to attend it. So I told my mom that I want it badly. So you take your time and decide. So and finally I got that yes, and we traveled. So me and my friend, we both traveled from Kerala to here because we had many friends, but because of some exams and all, they were like, they are not attending. So we decided somehow we'll attend it. So we came here, and what waiting for me here was a life-changing thing, an eye-opener, I can say. So I came here like a lazy girl, so I shared it early also, who was only interested to sleeping. I don't know what to do. I want to do something, but I don't know how and what. I also was that student who was standing in telling that India is my country, all Indians are my brothers and sisters, but don't aware of what is happening to my brothers and sisters or how I can help them. So I needed that guidance. Yeah, I got it from here. From here, I realized that it is in my hand. My day is my responsibility. My life is my choice and my responsibility. That magic of my life, that magicians, that magical stick it with me only. So how can I blame others for that, right? So I am responsible for whatever is happening in my life. So I am also responsible for what is happening in my brothers and sisters' life, because I have that hand to change it, because we call them brothers and sisters. So how can I sit silently when my brothers and sisters are not happy? So I realized that. And even I had that thing, I'm just my age,
what can I do in this age? I don't have any power. I don't have nothing. So from here I got a slap. Hey idiot, you just want a power that is willpower. If you have the will, of course you can do whatever you want. If you have that heart to do something, of course you can. So that realization I got, and I saw someone even below my age was doing some great jobs. So I thought, why can't I? So yes, and this journey was a beautiful one. As I told, it was an eye-opener. So it was time to choose a project. So what will I choose? So I chose Missile. So I thought, Missile, yeah, I was also a Missile winner. So that journey, okay. So I thought it's something, yes, I can do it. But when the reality came, when I want to face something, we planned it, and like for volunteers and all, I wrote some names and all. So I went back home with that full of positivity, full of energy. Yes, I'm going to do something. But yeah, I got that guy, Jaivaya, and he called me and told me we want to do Missile. So we should do it. So when I thought, here comes my exams, my semester exams was there. It was time to do Missile. So that I was thinking I want to go and give orientation and all, because in Kerala nobody knows what is OSS, nobody knows what is this Missile. So it is from us they are hearing this word for the first time. So we should be that careful it is not miscommunicated or not it is misjudged, because it is from us they are knowing it. So yes, we want to do something. So I even thought that I can't do this because it's not possible. I'm having my exams. So I should finish it. We were having that end, the final stage. We did it on February month. So it was like 28th you want to complete it. This fieldwork should be completed and everything should be completed. I don't know. I had my exams till 5th. February 5th I had my exams. So my exams is over. From February 7th, I'm studying in another district. So I came back to my home. I was in hostel. I came back to my home. And that motivation, that inspiration and all we got from the Kerala team, and also my coolest guiders I always tell, Jaivaya. So I finally thought like, yes, let's give it a try. So I'm that girl who is too afraid to get a no. I shared it earlier also. So if it is no, I will not do that. If the result will be no, then no, I will not go and approach. But I want to approach schools. I want to talk with people. And I'm also not like giving my hands forward to talk someone to. If someone is coming and talking to me, I will talk back. But not that one who approach someone and talk. But now I want to do that. What will I do? So I went to lots of schools and I heard it was a season we call exam season. So all those people had like, it's COVID and all, so lockdown is over now. Only some schools and some classes were open. So what can we do? We don't have time and all. So I was like, I was prepared to accept that no with a smile, and also said then thank you for your time to hearing me and all. So that change I got, if it is no, okay, thank you. So I told like that. And yes, of course, like after lots of struggles, we got some schools where they accepted to give orientation, and we did orientation online also. And here comes the participants. I was a participant, and what all question I asked to my guide and all, they are asking to me, what will I do now? I want to I want to give answers to their question, because they trust me and they came and I want to give those answers. And I was prepared for that also. And all this energy and positivity I got from this camp, I kept it. And when someone asked how long you are with Oasis and all, I was just here for 15 days camp. So, and yeah, many people trusted me, and in the celebration when some friends shared like I was motivated by this girl, I was like too much happy because somebody trusted me and got motivated because of me. And here I got that proof. I proved that age is just a number. So if you want to do, if you have that power, that willpower, yes, of course we can do something. So I was too happy. Yes, our number was not even, we got, me and Anaga together, we did Missile. So we got 19 Missile winners. And the number which I gave to Riyadi, they promised Riyadi that we will bring 500 to 700 Missile winners here. I know 19 is not that number, but though
I give it a try now. So I feel like, okay, it's fine. It is just a beginning and it's to be continued. Thank you. हेलो, माय नेम इज़ अनोखी एंड आई एम फ्रॉम विद्यानगर। सो मेरी जर्नी जो है वो स्टार्ट करने से पहले कि मैंने जब MSLDP का जो प्रोग्राम किया उसके पहले जो मीन्स उसके बिफोर मैं कैसी थी, वो एकदम डिप्रेशन वाली आदमी मीन्स इंसान थी। बहुत डिप्रेस हो जाती थी कि हाँ ये कैसे करूँ, इतना सब बहुत टेंशन होता था। सो MSLDP प्रोग्राम था, उसमें 15 डेज का कैंप था, उसमें मुझे आना था। सो मैं आई, यहाँ सब सिखाया गया। मीन्स पहले तो मुझे खुद की भी इम्पोर्टेंस नहीं थी। मीन्स ऐसे मैं सोचती थी कि हाँ चलो ना, मैं यहाँ क्या काम की हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, उससे अच्छा तो मर जाओ। तो मतलब ऐसी इंसान थी मैं। तो जब मैंने ये MSLDP का जो प्रोग्राम किया तो मुझे खुद की इम्पोर्टेंस पता चली कि हाँ मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या करने के लिए हूँ, मुझे खुद की इम्पोर्टेंस पता चली। फिर बहुत सारे कोट्स हमें सिखाए गए थे प्रोग्राम में, उसमें भी बहुत चेंजेस मेरे में आए कि हाँ वो कोट सीख के कि बहुत चेंजेस मेरे में आए। फिर उससे बहुत हेल्प हुई। फिर अभी भी स्टेज फियर तो मुझे बहुत है, अभी भी हो रहा है, लेकिन ये सब डेवलप्ड हो रहा है धीरे धीरे। फिर मीन्स पहले तो ऐसे कि हाँ सपने दिखती थी, चलो ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन फिर कुछ कर नहीं पाती थी। लेकिन ये MSLDP एक ऐसा ही प्रोग्राम था जो मीन्स OSCC जो ये प्लेटफॉर्म है जहां आप सपने देखते हो तो पूरे भी कर सकते हो। मतलब पहले से ही मेरा ड्रीम है कि हाँ मैं टीचर बनूंगी, बच्चों को पढ़ाऊंगी। सो MSLDP का जो मेन मोटो था कि हाँ हमें कुछ करना है एज अ लीडर, व्हाट वी कैन डू फॉर अदर्स। सो प्रोजेक्ट की बारी आई। सो सबसे पहले मेरे दिमाग में मीन्स हमारे घर के नजदीकी बहुत स्लम एरियाज है, वहाँ रोज मैं बच्चे वहाँ होते हैं तो रोज उनके वहां से गुजरती हूँ। तो रोज मुझे दिखता है वो कुछ पढ़ नहीं पाते, कुछ मीन्स ऐसे भी बच्चे कि वो बोलने का प्रॉब्लम है, सो वो उनकी मम्मी उनको भेजती नहीं है स्कूल। किसी के हाथ मीन्स कुछ हाथ, एक हाथ नहीं होता है, एक पैर नहीं होता है, सो उनको स्कूल नहीं भेजते हैं, उनको पढ़ाते नहीं। तो जब मैंने कोई प्रोजेक्ट लेने की बारी आई तो सबसे पहले मेरा जो है वो वहां ही जाता था कि हाँ कि इन बच्चों के लिए मैं कुछ करूँ। सो मैंने अपना वॉलेंटियर प्रोजेक्ट लिया कि हाँ मैं इन बच्चों के लिए कुछ करूंगी, उनको पढ़ाऊंगी। सो मैंने लिया गोल कि मैं ऐसे 80 स्टूडेंट्स है स्लम एरियाज में जो रहते हैं उनके लिए काम करूंगी और उनको पढ़ाऊंगी। सो घर गई मैं, फिर ढूंढा, वहां से स्लम एरिया से ही 12, 13, 15 स्टूडेंट्स मिले कि हाँ कि चलो उनके लिए काम करेंगे। फिर दूसरी मेरी फ्रेंड आई, दूसरे रीजन में गए, वहाँ 10, 20, 30, 40, 50 मीन्स बच्चे आते ही गए कि हाँ आप हमारे बच्चों को पढ़ा देना। तो मैंने कहा ओके। सो ऐसे धीरे धीरे करके 50 स्टूडेंट्स हुए, 60 स्टूडेंट्स हुए। फिर हमें स्टॉप करना पड़ा कि नहीं अब ज्यादा मत आओ, हम नहीं ज्यादा कर पाएंगे। लेकिन जब भी मैं वहां पढ़ाने जाती थी कि हाँ और ज्यादा बच्चे आते थे, दूसरे दिन जाओ तो 4 और ज्यादा नए बच्चे आ जाते थे कि हाँ हमें भी पढ़ना है। फिर चौथे दिन जाओ तो और नए बच्चे आ जाते थे। मैंने कहा हाँ ठीक है, सब आ जाओ, सबको पढ़ाएंगे। मतलब इतने सारे 80+ मेरा गोल था कि 80 स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। मतलब 80 से ज्यादा बच्चे हो गए थे, ज्यादा आ ही रहे थे कि हाँ हमें भी पढ़ना है। तो जब मैं उनको पढ़ाने जाती थी ना तो मैं एक्टिवा लेके वहां जाती थी। तो जब भी आती तो वो पहले फर्स्ट दिन वो कहते थे टीचर टीचर टीचर। मतलब वो वर्ड सुन के पहली फीलिंग की हाँ इतना सारा पावर आ गया, इतना सारा एनर्जी आ गया कि हाँ ये लोग मेरे को टीचर बोल रहे हैं। मतलब बहुत सारी खुशी हुई। सो उनको पढ़ाती थी, उनको रोज 2 घंटे पढ़ाती थी। फिर नहीं टीचर आप वापस मत जाओ, आप 4 घंटे बैठो। मतलब मैंने कहा कि मेरा भी काम होता है, कभी कभी तो 3 घंटे भी वो लोग लेते, नहीं मैम मुझे जाने नहीं देते कि हाँ आप पढ़ाओ, बैठ के हमें पढ़ाओ, अब हम आपको जाने नहीं देंगे। तो ऐसे पढ़ाती हूँ रोज। फिर रोज अब ऐसे वापस भी जाती हूँ तो कहते हैं कि हाँ टीचर आप मत जाओ, टीचर मत जाओ। लेकिन मैंने कहा कि हाँ जाना तो पड़ेगा, लेकिन फिर और 15 मिनट और बिठा के रखते कि नहीं आप हमें और पढ़ाओ। मतलब ऐसे इतने उनको देख के इतनी हैप्पीनेस होती है, इतने हैप्पीनेस। मतलब जब
देखते एक ऐसा लगता नहीं है कि हाँ हम नहीं कर पाएंगे। फिर एक ऐसा आया कि हाँ जनवरी तक बहुत मेरा जो प्रोजेक्ट था वो बहुत अच्छे से चला। फिर टीम जो है वो मम्मी भी बोल करती थी कि हाँ तू ये क्या फालतू का काम कर रही, इसमें तुझे कुछ मिलता तो नहीं, रोज बोलती थी, मतलब इतनी चिक करती थी, रोज बोलती थी कि कुछ इसमें तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है तो तू क्यों करती है कुछ कमा। मैंने कहा मम्मी बट उन बच्चों को देख के कि ऐसा होता नहीं कि हाँ ये काम नहीं होगा मेरे से, और ज्यादा करने का और उसको एक्सप्लोर करने का मन होता है। तो मैंने मम्मी को कहा हाँ तुम चुप रहो, अभी मुझे करने दो काम अपना, तुम अपना देखो, मैं तो करूंगी, आपको जो बोलना है वो बोलो, मैं तो अपना काम करूंगी। फिर जनवरी से बाद अभी कॉलेजेस स्टार्ट हुई तो फिर टीम है जो उनको भी कॉलेजेस मीन्स मेरे साथ जो टीम है जो सबको पढ़ाती है उसको भी कॉलेजेस है, किसी को 10th है बोर्ड है तो उनको भी टाइम नहीं मिलता था। तो ऐसे थोड़े थोड़े करके सब टीम मेंबर्स भी चले गए जो मेरे साथ काम करते थे, फिर रही मैं अकेली। फिर मुझे लगा कि और वैसे भी जो बच्चे आ रहे थे वो भी थोड़े थोड़े कम हो गए क्योंकि सबकी स्टार्ट हो रही थी कॉलेजेस और स्कूल स्टार्ट हो रही थी। तो क्या हाँ कि अच्छा ठीक है कम हो रहे थे बच्चे, मतलब पहले जितने बच्चे हैं उससे कम होने लगे। फिर मुझे लगा कि नहीं क्विट कर देना है अब। फिर अब दीदी का फोन आया कि हाँ ऐसे ऐसे तुम्हें करना है। मैंने कहा नहीं मुझसे अब नहीं होगा कि मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वैसे भी बहुत कम बच्चे आ रहे। लेकिन फिर अवधि दीदी ने मुझे बताया कि तुम एक बच्चे को भी पढ़ा रहे हो, उसके लाइफ में तुम कितना उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, कितना उसको लाइफ उसकी कितनी चेंज होगी, तुम उसको पढ़ाओगे उसकी लाइफ कितनी चेंज होगी। फिर मुझे वो एक बच्चे का भी इम्पोर्टेंस फिर पता चला। फिर जब भी डिसमोटिवेट होती थी फिर अगेन जो गाइड्स है वो कॉल करते, फिर बहुत सारा मोटिवेशन देते, फिर अगेन आई स्टार्ट वर्किंग। फिर अभी जब काम कर रही हूँ तभी भी दूसरे दिन और 4 बच्चे अभी और आने लगते हैं। सो पढ़ाना बहुत मजा आता है स्लम एरियाज में। हाँ मैंने बहुत सारे उनके लिए वो कहते हैं कि मैम हम चलो ये रेस वाली कंपटीशन करते हैं, ऐसे राइटिंग वाली कंपटीशन करते हैं। सो ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी हमने हेल्ड की थी उन बच्चों के लिए। फिर उनको हाँ कि कंपटीशन में जीते तो उनको कुछ देना तो पड़ता है, तो कैसे दूं, मेरे साथ तो पैसे नहीं है, मम्मी भी नहीं देती। तो और उन बच्चों को मीन्स उतना वो हार्ड वर्क कर रहे थे कि मुझे लगा कि हाँ उनको चलो कुछ देना चाहिए। सो मैंने और मेरी टीम ने डोनेशन कलेक्ट करने का किया, मीन्स करने का सोचा, तो हमने डोनेशन भी कलेक्ट कर दिया। तो वहां भी जहाँ हम डोनेशन कलेक्ट करने जाते थे वहां भी कहते कि हाँ आप छोटे बच्चों को पढ़ाते। हाँ मैंने कहा हाँ, तो क्या हाँ हमें भी इस प्रोसेस में ज्वाइंट होना है कि हाँ हम भी आएंगे आपके साथ। मैंने कहा ठीक है आप आना, पूरा देखना, फिर आप भी अगर इंटरेस्टेड हो तो आना। और वहाँ डोनेशन कलेक्ट करके वक्त जो वहाँ स्वाइपर्स जो कचरा मीन्स झाड़ू लगाते हैं तो उनके भी बच्चे कि आप मेरे बच्चों को पढ़ाओगे। मैंने कहा हाँ आ जाना, मेरा घर तो यही है और अगर आप कहोगे तो मैं आपके घर भी आ जाऊंगी, नजदीक एरिया वाले थे। तो मैंने कहा ठीक है चलो आ जाऊंगी। लेकिन फिर हाँ कि थोड़ा कम एक्सपेंस, थोड़ा डोनेशन है वो थोड़ा नहीं हुआ था ज्यादा, क्योंकि बच्चे तो बहुत 100 स्टूडेंट्स तो सबके लिए कैसे मैनेज करने का। फिर मम्मी तो दे नहीं रही थी, मम्मी को थोड़ा वो दे ही नहीं रही थी। मैंने अपने पॉकेट मनी में से दिया, अपने फ्रेंड्स ने बहुत मेरी हेल्प की है, मेरी जो टीम है उन्होंने मेरी हेल्प की है, फिर उनको दिया। फिर लास्ट में सबको नोटबुक्स दी, पेंसिल्स दी, इरेजर मीन्स वो सब किट्स दी, मतलब पेंसिल किट और जो छोटी किट है वो दी हमने। फिर तब हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थोड़ी क्रिटिकल थी, लेकिन उस सबको एक चैलेंज की तरह लेना, उसको फेस करना, मतलब वो छोटी बात नहीं है। मतलब मैं इतने बच्चों को बढ़ाती हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील। मतलब ऐसे मैं कह रही हूँ कि हाँ इतना आसान है, लेकिन जब पढ़ाने जाती हूँ तब पता चलता है कि हाँ ये कितना हार्ड है। और ऐसे भी बच्चे मीन्स अचीवमेंट्स की बात करूँ तो अचीवमेंट्स तो बहुत सारी मिली है। मीन्स बच्चों की लाइफ में उनको अचीवमेंट्स मिले, मतलब उनके अचीवमेंट तो मेरी अचीवमेंट। सो हाँ मतलब हाँ तो कुछ बच्चे थे कि उनको ABCD कुछ मीन्स बड़े मीन्स मेरी एज के भी बच्चे थे, उनको अभी प्रॉपर वो स्कूल ही नहीं भेजते थे मम्मी, तो उनको ABCD भी नहीं पढ़ना था, प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं लिखना था। छोटे छोटे बच्चे उनको भी प्रॉपर इंग्लिश नहीं लिखना, तो हमने उसमें वर्क किया, उनको इंग्लिश सिखाया। तो अब वो मेरे से भी मीन्स हम
अच्छा सा इंग्लिश बोल पाते, लिख पाते उतना। और अभी भी मैं यहाँ बैठी हूँ तो वहाँ घर पे भी मेरी सिस्टर है, वो स्लम एरिया में अभी जाती है रोज पढ़ाने। और मेरा छोटा भाई है तो वो भी कहता है कि हाँ दीदी, जो मेरे से छोटे बच्चे जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में उनको मैं पढ़ाऊंगा। मैंने कहा ठीक है तो पढ़ाना। सो ऐसे अचीवमेंट्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली कि हाँ तो बहुत अच्छा काम कर रही है। फिर प्लेस की मैनेजमेंट नहीं हो रही थी, जगह नहीं मिल रही थी हमें। सो 2-3 दिन हम ऐसे रोड में मीन्स चद्दर ऐसे बिठा के बैठे, तो 2-3 दिन हुए तो उन्होंने सामने से बोला कि हाँ आप मेरा घर ले लो, आपको प्लेस मिल गई। मतलब हाँ, मतलब बहुत सारी उन्होंने ब्लेसिंग्स दी, उन्होंने खुद भी हमको डोनेशन में हेल्प किया, बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत। सो थैंक यू, इट इज माय जर्नी। Hi all. So I'm Anatha. So I'm coming from Kerala. So as she said, we did everything together. So yes, I completed Missile and I was a Missile winner. So I was at home and the camp was announced some days. In my home, it was a totally different scenario. My mom and dad said, "You're not going. How will you go? It's lockdown. You're not going." Okay. And then first I was angry. There was this anger that comes to every teenager. I also had the same anger. I was too angry. Why don't you let me go? This is my achievement. What? I said everything, and it was just a desperation moment that I didn't get meat, and I was in so much despair that I wanted to get out and do something so I could get out of that despair. So I went to my room, and then I sat down there. And then after some time the anger eased. And then I came back and then I said, if you want me to have that achievement, to have my achievement, please let me go. That's what they said. Okay, the next day, yes, they let me go. My dad, out of love for me, they let me go. So I came here with Jayalakshmi Didi. I came here. So about the camp, 15-day camp. So they were there. But it was all about confronting. It was all about talking. First day we came here, CMS was declared, and everyone was supposed to share their dreams. And I was like, I had already shared my stage fear before. And I was like, if I am going to keep an audience and I'm going to talk every 5 minutes, oh God, I will just chill and die. I can't do this. And then they said, tell your dream. So I was here, standing here in the same Excel hall. I was here and I was saying my dream and I was shivering like this. Everyone was saying, why is this girl talking like she's crying? Still, I'm talking like I am crying, but it's because of that fear. It comes out like that. Sorry. So, yeah. So, yes, but when I said my dream, it wasn't that I want to get made. That was my dream actually in 10th and all, but it changed. I said I want to remove suffering. It was the dream I had in 6th standard. I don't know how I renewed it, but I understood through MSLDP. I understood all that quotations and all. I understood that this is not my dream. Everyone was going for NEET. Everyone was going for science, so I was going for science. There was no meaning in it, and there is no meaning that I didn't get it. So everything was falling into place slowly, and I said, well, I want to do Missile. This is the way. So there is this misconceptions that I had. So many misconceptions when I first came into Missile. When I first came to IISc, is this legitimate or not? There must be something going wrong inside. Yes, there is something going on. This was my perception, but then it was trashed. And then this impossibility concept. I'm not going to do anything. No, I'm not going to do anything. How can I? And this happiness in giving. Everyone boasts about this happiness in giving, and I was like, why are these people boasting? Yes, yeah, I was like that. And then in small, when I was in 6th standard and all, when you do something for others, of course you feel happy, and after that you just forget it. But then you came here,
the quotations touched me so deeply that it is true. When you do that role play and when you see it, it is true. The happiness of giving is there. And when I went into the field, I felt it. I felt it really. So there is another thing that I want to say. There was a debate here on responsibility. Like she said, responsibility. I was that person who would blame the situation for anything. I didn't get NEET because I was stressed. I had 2 books to study, CBSE syllabus and that. Of course I couldn't handle it. It's not my fault. So I was this person. So there was this debate, like one truck driver was coming. I would be breaking the suspense, so I'm not doing it. So it was like, are you responsible for your future or not? Everyone was like, the situation is also responsible and you are also responsible. And I was also like that. But after some time, Jai Bhai and Riya Didi were sitting there. So they were looking at me like, I wasn't like, I didn't realize it, okay? I didn't go to that field. I said, I am responsible. I am fully responsible. But it wasn't because I was convicted that I'm responsible. By their faces, I understood that this is the answer. This is the answer. That's why I did it. And I guess Jai Bhai knew it. He was smiling at me like, gadbad hai. So, but after this, when I did MSLDP, I found out that yes, I am responsible. Whatever happens, if I am crippled, whatever happens, you are responsible. So that's it about MSLDP. And after I went, we did Missile together. So everything seems possible from IISS. Everything is possible. You can do this. Yeah, we can do this. Oh, it is possible. And then first came the issue of money. Scholarship, Jai Bhaiya knows, and sponsorship, Jai Bhaiya knows and Jayalakshmi Didi knows. How are we supposed to get sponsorships? I don't know. This is all good. When we explain, yes, we want to inspire leaders, motivate leaders. When it comes to the issue of money, it's like, beta, no, this is not happening. No, why? Why do you need money? You can just go. Like, we need money for traveling. Everyone was looking at, and mine was so much a conservative family that when I'm going out for anything, an elder brother or somebody should come with me. Please. So somebody should come with me every time. So my productivity was reduced because they get so much less time to come, and of course the traveling expense was always double. When you go in public transport, it is always less. So I'm like, I need money. And after some time, I was asking Rebecca, can you ask from family? Can you take your pocket money? No, you can't take your. No, you can't take. And he says it in so much pleasant way. No, you can't take money. Okay. Okay, and I said, can I have it from my uncle, please? And then I had it from my uncle. That's how I went. And then when you go to school, it's another story. It is not easy for me to confront when they say, are you getting a salary for this? Are you getting a remuneration for this? It is not easy for me to confront and say no. And I'm so pleasing. I will say, no, it's not. I'm voluntarily doing it. They don't believe you sometimes. No, why can't? No, you must be doing this for something, right? It's just. This misconception is too deep that you must be doing for something. Yeah, I'm doing for my happiness. No, that's not easy to understand. If you're doing it for money, it's easy to understand. So, my own school. I went to my own school and I was rejected. I was too much in pain because it is my own school and I was still rejected. But then there was other schools who could understand me. Who could understand, they gave so much time to me that they understood what the conviction was, and there was this misconception in my mind that there is no hope in this world, there is no good in this world. It was changed when they said, yeah, there is truth, there is hope, there is happiness, and there is still some good left in the world that we can change it. So that is what my experience was. So thank you. Thank you so much. Again, one more thing. We debate. Me, Jayalakshmi Didi and Jai Bhaiya debate on my aim every day. There is no need.
There is sometimes we think about NEET, sometimes we think about literature, sometimes I think about being an IAS officer. But there is this thought that he taught me: find what you love and let it kill you. And now I have found what I love, that is giving, helping, whatever it is, giving and helping, and I'm going to let it kill me. Thank you. ओके, हाय। ओके, मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं कच्छ से हूँ। ज्यादा डिफरेंट स्टोरी है। मैंने मिसाल विनर बन गई और यहाँ पे आ गई। खाना मुझे भाता नहीं था, दिन निकल नहीं रहे थे। जैसे तैसे कर निकल गए और हमने यहाँ पे जो भी सीखा वो मैं बता नहीं सकती कि एक एक चाटा पड़ता था, एक एक सेशन में एक एक चाटा पड़ता था कि ये है सच, ये तू कर रही है वो सच नहीं है। सो हमने यहाँ पे सेवा क्या है, देश प्रेम कैसा होना चाहिए। तो देश की जब सिचुएशन मैंने सुनी तभी तो मुझे लाकड़ी से मार पड़ी। थप्पड़ तो सभी सेशन में पड़ते थे, देश के सेशन में मुझे लाकड़ी पड़ी कि ये सच है भाई, ऐसा कुछ करना है। तो यहाँ से जो सीख के गई वो घर पे जाके मैंने बोला कि मम्मी अब मैं ये नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, कपड़े नहीं खरीदूंगी, खुद के पैसे से जीऊं। तो सबकी आंखें खुली रहेगी कि क्या कौन तू लक्ष्मी है ना, कपड़े खरीदने की बात में तू ना बोल रही है कि नहीं मैं कपड़े नहीं खरीदूंगी। तो वो सब चौंकने लगे। फिर मेरा फील्ड वर्क जो हमने प्रोजेक्ट लिया था, तो यहाँ से मैंने एग्जाम की ऐसी की तैसी और रिजल्ट की ऐसी की तैसी का गोल लिया था। तो जब तक गाइड का फोन नहीं आया तब तक मुझे नींद नहीं आई कि कब गाइड का फोन आएगा, कब मुझे कहेंगे कि अब तू कर स्टार्ट, तभी मैं स्टार्ट करूं। तो गाइड का फोन आ गया। तब उससे पहले मैंने सारी प्लानिंग कर ली थी कि ये 5 गांव है, इसमें इतने बच्चे रहते हैं, इस शहरी में इतने बच्चे रहते हैं, इस कास्ट के इतने बच्चे, इस एज के इतने बच्चे, उन सारे के फोन नंबर और पंचायत में सब घूम के आई, कितनी बस्ती है गांव में, क्या होता है, कैसे होता है, वो सब मेरे काम गाइड का फोन आया उससे पहले कर लिए थे। और फिर गाइड का फोन आ गया कि अब तुम जंग पे निकल सकते हो। शाम को मुझे ऐसा कि यस मैं कल से काम करूंगी। तो मैं रात को जैसे कि हमें सिखाया है कि रात को मेरा जनरली ऐसा होता है कि मैं बहुत लेट जागती थी सोशल मीडिया में, लेकिन मैं जल्दी सो गई। फिर 3 या 4 बजे मेरी नींद उठ जाती थी कि आयोजन सब ठीक ठाक है, वहां जाना फिक्स है, वहां की टिकट का डोनेशन हो गया है। नींद ही नहीं आती थी जब तक मैं काम नहीं करती थी। तो फिर ऐसा सोचा कि नहीं काम करके सो जाऊंगी, दोपहर के बाद मैं अभी जग लेती हूँ। तो मैं डायरी राइटिंग स्टार्ट की, मैंने वो भी स्टार्ट किया। फिर डोनेशन हमें जो यहाँ पे सिखाया कि आपके घर के पैसे नहीं, क्योंकि आप जो काम करते हो वो सारा देश इसमें इन्वॉल्व हो कि मैं मेरा समय देती हूँ तो कोई और समय नहीं दे सकता, तो वही पैसे देके देश की हेल्प करे। तो नक्की किया था कि नहीं घर के पैसे नहीं यूज करने। तो पहले तो मम्मी को बताया, तो मम्मी क्या बात है तू ले ले घर से, वो क्या देखने आते, प्रतीक भाई कहाँ देखने आते कि तूने घर के पैसे ले बाजू से मांगे। सो मैंने कि नहीं रूल्स मूल्य, वैल्यू इज वैल्यू। तो मैंने हमारे शहर में कीर्तन हुआ करते थे, बड़ी बड़ी बहनों जो मम्मी की एज की वो कीर्तन करती थी। तो उससे बताना कि नहीं आप कृष्ण भगवान के जो लिए प्रसादी में जो पैसे डालते वो पैसे मुझे दो और प्रसादी मत करो एक दिन, और मुझे वो पैसे टिकट में दो। तो पहले दिन तो वो नहीं, ऐसा नहीं, भगवान के पैसे हम दूसरे चाहिए तो दे सकते हम, पर ये मैं कीधुं ये प्रसादी આપણે જ ખાઈએ છીએ यार, એટલે वो प्रसादी हम ही ग्रहण करते हैं, तो ये पैसे मैं ले सकती हूँ, आप दूसरे देने की क्या जरूरत है। जैसे तैसे वो कन्विंस हुए और प्रसादी के पैसे मैंने ले लिए टिकट के लिए। फिर जाना हुआ फील्ड पर। तो
फील्ड पर पूरे वैल्यू के साथ जाना था। तो जितने, क्योंकि वो मेरे पैसे नहीं थे, मेरे पैसे तो मैं उड़ा देती कि नहीं चलेगा, चल 20 नहीं 30 ले ले तू, पर मुझे छोड़ दे वहां पे। लेकिन वो दूसरे के पैसे थे, तो कभी कभी 2-3 घंटे मैं लिफ्ट के लिए पहला लिफ्ट ट्राई करती, फिर लिफ्ट नहीं मिले तो टिकट के पैसे में उसके लिए यूज करती। तो ऐसा हुआ। फिर फील्ड पर निकलते थे तो वहां पे खाना लेकर नहीं जाती थी। तो जो इंसान को मैं जानती नहीं हूँ, जिसका फेस मैंने पहली बार देखा है, जिसका नाम भी नहीं पता, उससे जाके बोलना कि नहीं मुझे भूख लगी है यार, मुझे कुछ खाना दे दो, मैं घर पे शाम पे पहुंचूंगी, सो खाना दे दो। तो ऐसे भी चैलेंज आए। और जब मैं निकलती तब मुझे सब ऐसे देखते थे, ये लक्ष्मी जा रही है पैदल, देखो लक्ष्मी चल के धूप में जा रही है, या किसी भी जनरल वाहन में जा रही है। तो सब देखते थे। तो कभी कभी तो मैं इतनी अंदर से हो गई कि ये सब ऐसे क्यों जज कर रहे हैं मुझे। तो फिर मैं पूरा मुखौटा बांध के निकलती थी, किसी को पता ही नहीं चलता था कि मैं गांव से निकल गई। वरना मेरा नेचर ऐसा है, जो भी निकले उससे थोड़ी 5 मिनट बात कर लेती थी और फिर निकल जाती थी। और ये इतना तो ठीक था। तो मैंने घर वाले से बोला कि मुझ में कोई चेंज दिख रहा है आपको, तो आप मुझे वीडियो बना के व्हाट्सएप भेज दो कि क्या चेंज दिख रहा है। तो अमुक अंकल ने और आंटी ने बोला कि तुम मुझे बताओ, वो वीडियो में मैं उतार के तुम्हें भेज दूंगा। ऐसा नहीं कि तो कौन बोले यार। तो फिर जो जिसने भी चेंज देखा उसने वीडियो मुझे भेजा और उसने बोला कि मैं ऐसी थी कि सीरियल देख के ही सोना है, कुंडली भाग्य और कुमकुम भाग्य देख कर ही सुना है। कितनी भी थक, मैं डांस क्लास से आती थी, इतनी थक जाती थी कि अभी आंखें मेरे से रिक्वेस्ट करी कि लक्ष्मी प्लीज अभी रहम कर हम पे थोड़ा, हमने बहुत काम कर लिया, अभी तू सो जा। नहीं, सीरियल देख के ही सुना है, वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और डेली नए कपड़े पहनना वो इम्पोर्टेंट। लेकिन सीधी घर वालों की कहना है मेरे लिए कि मेरी चीज कभी मेरी जगह पे नहीं होती थी। और मेरा ऐसा था कि खाने के लिए बेड पे चाहिए और उठाती नहीं थी वो, क्योंकि वो ऐठा है ना, वो मैं नहीं उठा सकती, मेरा ऐठा मैं नहीं उठा सकती। तो टोटली चेंज, ऐसी लक्ष्मी और ऐसी हो गई, वो मान ही नहीं सकते। वो 15 दिन में तो नहीं मान सकते, 1 साल 2 साल में तो वो मान लेते। तो कई सारी ऐसी स्ट्रगल आई। फिर कभी कभी ऐसा होता था कि काम अभी मुक देना है, मेरे को नहीं करना है, बस थक गई। अरे टोटली स्ट्रगल आए वो ठीक है कि पैसा नहीं है, घर से ऐसा है, जाने में प्रॉब्लम है, वो सब ठीक है। पर लेकिन जो जिसके लिए हम करते हैं वो वॉलंटियर्स के वो बालक ही नहीं आए सेशन में, तो क्या कर लेंगे हम। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि एक सेशन में कोई भी नहीं आया, कोई भी बालक नहीं आया। तो अंदर से गुस्से वाली, हाथ तो निकल ही जाता था, वो हमारी वैल्यू थी। तो अंदर से ऐसा हुआ कि अब सब कुछ छोड़ देना है। उस दिन मैंने खाना नहीं खाया, बहुत पूरी रात रोना आया और नक्की कर लिया सामान पैक करके, अब भी नहीं करना है तो नहीं करना है। तो सुबह होके फिर भी वो सामान वहां पे रख दिया। ये MSL DP ने सिखाया कि मरते दम तक हमें ये नहीं छोड़ना है और हमारी हार नहीं माननी है। हमें कोई भी सिचुएशन हो, बालक नहीं आए, आज नहीं आए, कल नहीं आएंगे, वो हमने यहाँ से सीखा है। और हमारी एक बहुत अच्छी चेन चल रही है। प्रतीक भाई ने मुझे सिखाया कि तुम यहाँ कुछ आए हो तो धक्का खाने नहीं आए हो, कुछ करके जाना है तुमको। और मैंने ये बात मेरे वॉलंटियर को सिखाई कि तुम यहाँ पे आए हो तो धक्का नहीं खाना है। उस वॉलंटियर ने जहाँ पे सेशन लिया उसको सिखाया कि तुम यहाँ पे आए हो, धक्का नहीं खाने आए हो। और उस वॉलंटियर ने भी चैलेंज लिया कि मैं 5 लोगों को सिखाऊंगा कि नहीं, धक्का नहीं खाना है। So, हमारी ये बढ़िया सी चेन चल रही है और कई सारे सपने मेरे, और मुझे वास्तविकता समझ में आ रही है अभी कि मेरे जो सपने हैं वो बहुत बड़े और काम बहुत छोटा है। हो जाएगा, लेकिन जो मैं सोच रही हूँ उससे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। सो थैंक यू सो मच।
नॉट ओनली दिस किड्स, बच्चों ने तो बहुत अच्छा काम किया। हमने एक छोटा एक्सपेरिमेंट ऐसा भी किया था कि केआर सरोफ फाउंडेशन जो हमारे साथ जुड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके टीचर्स के लिए भी हमने मिसाल कंपटीशन रखी और उसमें से 22 टीचर्स मिसाल सोशल लीडरशिप प्रोजेक्ट में शामिल हुए थे। तो उन्होंने जो ये काम किया इस तरह से ही किया, उन्होंने चैलेंज लिया प्रोजेक्ट के। थैंक यू, 1 मिनट में खत्म करूंगा। तो ये जो 22 टीचर्स थे उन्होंने भी यही उत्साह के साथ बहुत अच्छा काम किया और ऐसा हुआ कि जो 1 साल 1.5 साल में 2 साल में वहां काम नहीं हो पा रहा था, वो 3 महीने में उन्होंने करके दिखाया। और वो जो 22 लोग हैं उनको देख के पूरी टीम को इतना इंस्पिरेशन मिला है कि अभी बहुत सारे बार उन्होंने बताया कि बाकी हमारे लोगों को कब ये प्रोजेक्ट मिलेगा, वहाँ 15 दिन आने के लिए कब मिलेगा। हमने कहा कि वो प्रोसेस हम डिजाइन करेंगे, वो तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे था और अच्छा हुआ है तो हम करेंगे। सो नॉट ओनली द चिल्ड्रन बट MSLDP हैज टच द टीचर्स, एल्डर्स। वो 40-45 साल के टीचर्स ने भी ये काम किया है, जाके बच्चों को मिले हैं, लाइव क्लास लिया है, सेशंस लिए हैं। तो ये एक मैजिक जैसा हो गया है MSLDP और अच्छे से कर रहा है। तो ये कोरोना की हमारी जो गिफ्ट मिली है वो बढ़िया है, उसको हम बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। 15 दिन में इतना ज्यादा किया है तो दे रियली नीड अ स्टैंडिंग ओवेशन, राइट? सो 15 दिन में अगर ये बच्चे इतना कुछ कर सकते हैं तो अभी तो सफर शुरू हुआ है, कितना आगे जाएंगे। और एक चीज नोट करने वाली है कि एक ऐसी वर्कशॉप है जो एजुकेशन, जो हम बोलते हैं ना कि अंदर छुपा ही होता है, उसको ही सिर्फ बाहर निकालना है। और अगर ये पेड फॉरवर्ड, ये जो इंडिया का जो हालत है इंडिया की, उसको ध्यान में रख के, कोर में रख के ये पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया है कि कैसे हम इंडिया को आगे लेके जाए। तो अगर ऐसे बच्चे जुड़ते जाएंगे, ये पेड फॉरवर्ड की मूवमेंट जो है कि हमें जो मिला है वो पे इट फॉरवर्ड, अगर हम उसको आगे लेके जाएंगे तो कितनी जल्दी हमारा इंडिया कहाँ पहुंच सकता है अगर ये स्पीड से हम काम करें। दिस इज MSLDP।